Good morning, students. Before starting any chapter, I wanna tell you about your syllabus. So, then start now. You will see here your chapter first, crop production and management. This is your first chapter. In this chapter, your first topic is classification of crops. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में टू वेज हैं. फर्स्ट वन इज ग्रोइंग पैटर्न एंड सेकेंड वन इज बेसिस ऑफ ग्रुप्स. ग्रोइंग पैटर्न में इंक्लूड होंगे रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स मीन्स वीट, ग्राम, मस्टर्ड and kharif crops means cotton, groundnut. So on the basis of patterns we will take that is first way, and second one on the basis of group. So in group we will include fruits, vegetables, oil producing crops. So these things will come in on the basis of group. Next one you will see second topic, fertilizers and manure. Fertilizers, those prepared in factories, and manure, those prepared by cattle dung. So this also we will study in this chapter. Next one topic is irrigation and sources of irrigation. Irrigation, water supply in crops, that is irrigation, and there are many sources of irrigation like lakes, pond, dams, rivers. So that is the sources of irrigation. Your next topic is harvesting. So you know about harvesting, cutting of crops after it is mature. यानी जब फसलें पक जाती हैं तो उनको काटने की जो प्रोसेस है that is harvesting. And after cutting the crops we have to keep them at a safe place, and that is storage. So this one is your first chapter. Next one chapter is second, microorganisms, friend and foe. You will see here your first topic, types. So there are many types of microorganisms like bacteria, virus, fungi, protozoa. Next one topic, their shapes. So we can take some examples like rod shaped bacteria, spiral shaped bacteria. So there are many shapes of microorganisms. Next topic is friendly microorganisms and harmful microorganisms. Friendly microorganisms से mean वो microorganisms those are friend. So how many there are many microorganisms those are our friend. We can take one example like lactobacillus. Lactobacillus is present in curd and it can convert milk into curd. One more example I want to tell you, that is rhizobium, and this rhizobium, that is a bacteria and it is present in leguminous plants. Leguminous plants means pulses. Okay, so that bacteria is present in the leguminous plants, and what is the work of rhizobium? Nitrogen fixation. So rhizobium also a friendly microorganism. Next one, harmful microorganisms. Harmful, those are harmful for us. हम कह सकते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म पहुंचाते हैं. फॉर एग्जांपल HIV, इट इज़ अ वायरस, एंड इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में एक डिजीज़ दैट इज़ एड्स, ये डिजीज़ उनमें होती है. नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक. नाउअडेज यू नो देयर इज़ अ वायरस एंड दैट इज़ कोरोना. सो इसकी वजह से हम सब इस प्रॉब्लम में इस समय हैं, एंड कोरोना भी एक वायरस है जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं इन ह्यूमन्स, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स. So in this chapter these all topics we will discuss. Next one chapter you will see chapter third,
Chapter third is synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers. If you remember, in 6th class I taught you about the fibers, and I taught we will divide the fibers in two parts, natural fibers and synthetic fibers. So in this chapter we will discuss synthetic fibers in detail. So firstly we will discuss about their types. So synthetic fibers के types में I taught you firstly nylon, polyester, rayon. So these are the types of synthetic fibers. Second one topic is characteristics. Synthetic fibers के क्या characters हैं? So there are some characters like they can dry quickly. बहुत जल्दी ये जो cloths हैं, ये fibers जो हैं वो easily बहुत जल्दी से सूख जाते हैं. लेस एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से हम उसको परचेज़ कर सकते हैं. एंड ईजी टू मेंटेन, और उनको हम उनकी जो केयर है वो इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स को हम क्लासीफाई करेंगे टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. सो थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होंगे? व्हेन वी विल प्रोवाइड देम हीट they can easily melt. Okay, so we will call them thermoplastic. For example, polythene easily melt होता है. Next one, thermosetting plastics. Thermosetting plastic just opposite to thermoplastic. When we will provide them heat, they will not convert in their soft form. ये melt नहीं होंगे, soft नहीं होंगे. So we will call them thermosetting प्लास्टिक्स. एग्जाम्पल है बेकेलाइट. बेकेलाइट का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में होता है क्योंकि वो इजीली मेल्ट नहीं होता. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन चैप्टर थर्ड. नेक्स्ट वन चैप्टर यू विल सी हियर, चैप्टर 4. चैप्टर 4 इज मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द मेटल्स की मेटल्स क्या होता है. We know about the metal. There are many metals like gold, silver, copper, aluminium. ये सब क्या हो गए? Metals. And next one is non-metals. Non-metals example are here sulfur, carbon, phosphorus, oxygen. So we will call them non-metals. In this chapter we will study about their physical properties and their chemical properties. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करनी है एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट यू विल सी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हियर रिएक्शंस. रिएक्शंस में 3 थिंग्स यहाँ दी हुई हैं. फर्स्ट वन वाटर, एसिड एंड बेस. So metals and non-metals when they will react with the water, acid and base, तो उनके क्या reactions होते हैं? We will discuss this thing in this chapter. And next one topic is here uses of metals and non-metals. So metals के uses तो आपको बहुत अच्छे से पता है, like gold है, silver है, उनका use ornaments बनाने में होता है. कॉपर है, उसका यूज़ वायर की फॉर्मेशन में होती है, या फिर कॉपर से हम यूटेंसिल्स भी बनाते हैं. एंड नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन का यूज़ हम ब्रीदिंग में करते हैं. एंड फॉस्फोरस का यूज़ क्रेकर्स की फॉर्मेशन में होता है. तो इन सब के यूजेस भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन यू विल सी योर फिफ्थ चैप्टर इज हियर, कोल एंड पेट्रोलियम. कोल की स्टोरी, कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे कोल और पेट्रोलियम बने. वी नो वेरी वेल कि हम कोल एंड पेट्रोलियम जो हैं इनसाइड दी अर्थ, यानी अर्थ के नीचे से हम उसको गेन करते हैं. कोल को माइंस जो हैं उनसे गेन करते हैं. पेट्रोलियम को भी हम जो पेट्रोलियम के वेल्स होते हैं उनसे हम खुदाई करके उसको बाहर निकालते हैं. सो उनकी फॉर्मेशन अर्थ के इनसाइड में कैसे हुई, कैसे वो बने, सो उसका स्टोरी हम इसमें स्टडी करेंगे. फिर कॉल के प्रोडक्ट्स कौन से हैं? कॉल के प्रोडक्ट्स हैं लाइक कॉल गैस है, कोक है, कोल टार है. सो उन सब को डिटेल्स हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वन पेट्रोलियम.
पेट्रोलियम से रिलेटेड एक वर्ड है दैट इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मीन होता है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करना, दैट इज रिफाइनिंग। So how many constituents of petroleum, like LPG, liquid petroleum gas, petrol, diesel, kerosene. So these all are constituents of petroleum. So इन सभी constituents को हम refining की process से separate करके use में लेते हैं. Next one topic is here natural gas. Natural gas का एक example है that is CNG. Full form of CNG, compressed natural gas. Why we will call this gas compressed? Because we will fill this natural gas on the high pressure in cylinders. ठीक है, इसको हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड करके, संपीड़ित करके हम सिलेंडर्स में फिल करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एंड इट इज़ गुड इन द कंपैरिजन ऑफ एलपीजी. क्यों गुड है? क्योंकि एलपीजी जो गैस है वो हैवी होती है एंड सीएनजी गैस लाइट वेट होती है. सो इजीली जब ये इनका लीकेज होता है तो ये इजीली एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती हैं और वहाँ बर्निंग का जो एक्सीडेंट है उसके जो एक्सीडेंट के हम कहें कि एक्सीडेंट होने की जो प्रोसेस है वहाँ पर कम हो सकती है. बल्कि अगर हम एलपीजी को लेते हैं तो वो हैवी होती है और उस प्लेस पर कलेक्ट हो जाती है और बर्निंग वहाँ पर हो सकती है. नेक्स्ट यू विल सी चैप्टर 6. You can see chapter 6 combustion and flame. combustion का मीन होता है दहन. और दहन क्या कैसी प्रोसेस है कि जब कोई भी मटेरियल किसी गैस या मेनली हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई चीज़ बर्न होती है, रिएक्ट करती है, सो वी विल कॉल दैट combustion. सो इसका डेफिनेशन वी विल स्टडी इन दिस, देयर टाइप्स. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ फ्लेम. फ्लेम का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे कि कौन जो फ्लेम कोई भी जैसे हम कैंडल फ्लेम का बात करते हैं तो कैंडल फ्लेम जो है उसमें कौन सा सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है, कौन सा सबसे गर्म पार्ट है, उसकी आउटर लेयर्स, इनर मोस्ट लेयर्स कौन सी होती हैं. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक यू विल सी हेयर फ्यूल. फ्यूल का रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूल बर्निंग. यानी फ्यूल की बर्निंग के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सो देयर सम इफ़ेक्ट्स आर हेयर. फर्स्ट वन, रिलीज गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन. रिलीज गैसेस से मीन है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं सो उसकी वजह से बहुत सी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सो सल्फर गैस. ये सभी क्या होती हैं, बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म पहुंचाती हैं. नेक्स्ट वन, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज़ रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट आई टोल्ड यू फर्स्टली क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर हम बात करते हैं अर्थ की सरफेस की, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, एंड दैट इज़ एटमॉस्फेयर, दैट इज़ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर. सन रेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ की सरफेस पर आती हैं. अर्थ की सरफेस पर सनरेज आ रही हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, अगर CO2 गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो CO2 गैस की प्रेजेंस की वजह से ये जो सनरेज हैं वो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद वापस से एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाती हैं. If they are not going outside, then they will increase the temperature of earth surface. तो इन्होंने क्या किया, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट.
एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से कैसे रिलेटेड है? सो उसके पीछे रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग का मीन है जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पर जो ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर से जो रिवर्स निकलती हैं, तो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्लेशियर्स जो होंगे मेल्ट होंगी, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगी तो रिवर्स में वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, और जब वाटर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये रिवर्स जब ओशंस एंड सी में जा कर के मिक्स होती हैं तो ये ओशन एंड सी लेवल को भी इंक्रीज़ करती हैं, और उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो पानी में डूब जाते हैं। इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज हियर एसिड रेन। एसिड रेन, बेटा एसिड मतलब तेजाब हम उसको बोल सकते हैं, अम्ल बोल सकते हैं। सो उसकी रेन से क्या मीन है कि दोज हार्मफुल गैसेस विल रिलीज टू द फ्यूल बर्निंग, दे विल ऐड विद द रेन वाटर, एंड जब वो उसके साथ ऐड हो जाती हैं और वही रेन जब हमारे अर्थ सरफेस पर गिरती हैं तो वो हमारे अर्थ पे जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को कम कर देती हैं, तो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। एंड इसका एक और इफ़ेक्ट है हमारे ताजमहल पर। ताजमहल का जो भी हमें पता है ताजमहल वाइट कलर का है, बट एसिड रेन की वजह से उसका कलर धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है, पीला वो पड़ता जा रहा है, तो उसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ एसिड रेन। Next one, you will see your chapter 7, and chapter 7 is your conservation of plants and animals. कंजर्वेशन का मीन है संरक्षण, किनका संरक्षण? प्लांट्स एंड एनिमल्स का संरक्षण। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर 3 थिंग्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, wildlife sanctuaries and national parks. Sorry. So you will see now, wildlife sanctuaries and national park. Firstly, I told you in maybe 6th or 7th class. Now you will see about the बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व भी इनके जैसा ही है जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन में रखा जाता है, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ ट्राइबल्स होती हैं, यानी कुछ जनजातियाँ भी यहाँ रहती हैं जो कि अपने जीवन का निर्वहन यहाँ पर करती हैं। सो वी विल कॉल दैट बायोस्फीयर रिजर्व। Next one topics are here deforestation, reforestation and data book. So deforestation mean is वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, reforestation वनों का रोपण, and in this record of all the endangered animals and plants. So रेड डेटा बुक में क्या होता है, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी जो संकटग्रस्त हैं, जिनकी स्पीसीज रेगुलरली ख़त्म होती जा रही हैं, उन एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो रिकॉर्ड है वो रेड डेटा बुक में रखा जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए सेपरेटली दोनों के लिए सेपरेट रेड डेटा बुक होती है। सो दिस इज़ अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Next you will see about the cell structure and functions. Cell structure and functions, it is very interesting chapter. So first topic is here discovery. Discovery से mean है उसकी खोज, सेल को सबसे पहले किसने देखा। So we will study this topic in this chapter. Their shape, सेल की बहुत सी शेप होती हैं, डिस्क शेप होता है, इरेगुलर शेप होता है, ओके। इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, कोई बहुत छोटी होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, कोई लंबी होती है, तो इस तरह से उनके साइजेस हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ देयर नंबर्स, सेल नंबर्स। सो
सेल मल्टी सेल्यूलर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है या फिर यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर से मीन है अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है, दैट इज यूनिसेल्यूलर। और इफ एनी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स, सो वी विल कॉल दैट मल्टी सेल्यूलर। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं यूनिसेल्यूलर का, जैसे अमीबा है, मल्टी सेल्यूलर ह्यूमन बींग्स हैं। सो ये इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर अबाउट related to structure parts of the cell. When we will see the structure of cell, we will discuss here about these parts. First one, cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cell membrane is the outer layer of the cell. कोई भी सेल जब हम देखेंगे तो उसका जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. एंड नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ मटीरियल, या वी कैन से इट इज अ फ्लूइड, दोज आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. एंड न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, so it is also present inside the cell membrane. Now next topic you will see here, differences and similarities between plant and animal cell. So plant and animal cell दोनों different होती हैं और उनमें कुछ similarities भी होती हैं, तो उनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल कि जो प्लांट है, प्लांट में एक आपको पता होना चाहिए, जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. एंड फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है. एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में. लेकिन अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. तो ये चीज़ें इनमें डिफरेंट हो गई. तो इसी तरह से हम इनके डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ को डिस्कस करेंगे. Now you will see your next chapter is here, chapter 9, and chapter 9 name is reproduction in animals. If you remember reproduction in plants, I taught you in 7th class. वहाँ हमने देखा था कि प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है. ऐसे ही एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को भी हम डिवाइड करेंगे इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोज विल फॉर्म मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो उन दोनों के ऑर्गन्स को हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन टॉपिक इज हियर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन, फर्स्टली यू नो कि जब हम मेल एंड फीमेल गैमेट्स को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. सो वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस. नेक्स्ट वन टॉपिक इज हियर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. बेटा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज जाइगोट. जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, भ्रूण बनता है, एंड वो एम्ब्रियो धीरे धीरे एक बेबी चाइल्ड में कन्वर्ट होता है. तो किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है उसको हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वन यू विल सी हियर asexual reproduction. asexual reproduction different है sexual reproduction से, because in this reproduction no need of male and female gametes. यहाँ ज़रूरत ही नहीं होती इन दोनों gametes की. So there is example. First one is hydra and second one is amoeba. hydra firstly I taught you in 7th class. हाइड्रा में कौन सी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन के लिए? बर्डिंग की प्रोसेस.
बर्डिंग की प्रोसेस क्या है, कोई जो हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है, एक बर्ड बनता है, छोटा सा बर्ड, और वही छोटा बर्ड रेगुलरली बड़ा होता जाता है एंड सेम एज जो उसका पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल उसी के जैसा वो बन जाता है, तो दैट इज़ बर्डिंग। और जब वो बन जाता है तो अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाता है, so that is the reproduction. And in amoeba you will see there the process of the reproduction will be division. डिवीज़न की प्रोसेस में क्या है, जो अमीबा है वो डिवाइड होता है इन 2 सेल्स, 2 सेम सेल्स में डिवाइड होगा और ये दोनों ही सेल्स एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगी, तो दैट इज़ डिवीज़न। और ये डिवीज़न किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है। सो इसमें रिप्रोडक्शन का कौन सा पैटर्न है, डिवीज़न का पैटर्न है। ओके, देयर इज़ वन वर्ड डॉली क्लॉन। डॉली क्लॉन है, क्लॉन से मीन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से है जो सेम एज अपने पेरेंट के जैसा होता है, हूबहू जिससे वो पैदा हुआ है। हर कोई अपने पेरेंट के सेम एज अपने पेरेंट के जैसा नहीं होता है। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा मैच करते हैं, हमारी नोज़ उनसे मैच कर सकती है, आइज़ मैच कर सकती है, या फिर थोड़ा सा फेस उनसे मैच कर सकता है। सो इस मीन वी आर नॉट क्लोन ऑफ आवर पेरेंट्स, हम बिल्कुल उनके जैसे नहीं हैं। लेकिन जो डॉली थी, जो कि एक शिप थी, एक भेड़ थी, तो वो बिल्कुल अपनी पेरेंट के जैसी थी और इनको बनाया था एक साइंटिस्ट ने, नेम इज़ यान विल्मट नेम इज़ हेयर। सो उन्होंने इस क्लोन को बनाया था और इसी का डिस्कस इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को भी हम स्टडी करेंगे। सो दैट इज़ योर 9th chapter. So 1 to 9 chapter is completed here. Maybe you